بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. کل ہم نے مضاعف کے قواعد پڑھے تھے، تقریباً 5 قواعد پڑھے تھے. مضاعف کے ہم نے کتنے قواعد پڑھے تھے؟ 5 قواعد پڑھے تھے، اور وہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے. تمام قواعد جو ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے. اب یہ مضاعف کے قواعد صرف چند مقامات میں جاری ہوتے ہیں، ہر جگہ بھی جاری نہیں ہوتے ہیں. تقریباً 7 مقامات ہیں جہاں پہ یہ 5 قواعد جو ہے جاری ہوتے ہیں. تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ قواعد آپ نے یاد کرنے ہیں، اور کہاں کہاں کن کن صیغوں میں یہ قواعد جاری ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو. باقی آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، اور جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. تو مضاعف کے قواعد ہم نے پڑھے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ قواعد جاری ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلی مثال جو ہے ذبح، یہ کیا مثال ہے؟ ذبح، مد کے وزن پر. ذبح ذبح، ٹھیک ہے. اصل میں یہ ذبح تھا، ذبح تھا، ٹھیک ہے. یہ مد کا قاعدہ یہاں پہ جاری ہوگا. وہ مد، اب پورا قاعدہ میں لکھوں گا نہیں یہاں پہ، مد کا قاعدہ جاری ہوگا، بس یہ میں نے کر دیا. یہ ذبح کون سا صیغہ ہے؟ ذبح واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، ٹھیک ہے. ذبح یا ذب سے، ذبح یا ذب سے. اصل میں یہ کیا تھا؟ ذبتا، ذبابہ. 2 حرف ایک جیسے آ گئے، اور دونوں متحرک ہے، اور پہلے کا ماقبل بھی متحرک ہے، پہلے کا ماقبل بھی متحرک ہے. تو پہلے والے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، یہ کیا بن گیا؟ ذبح بن گیا، ٹھیک ہے. دوسرا لفظ جو ہے یذب، یذب، یہ یذب اصل میں یذبب، یذبب تھا، ٹھیک ہے. یذب اصل میں کیا تھا؟ یذبب، ینصرو کے وزن پر. واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے یذبب. یذب اصل میں یذبب تھا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک کلمے میں 2 متحرک حرف ایک ساتھ ہے، پہلے کا ماقبل ساکن ہے، مدہ بھی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. تو یمد اور یفر کے قاعدے کے مطابق پہلی کی حرکت جو ہے، پہلے حرف کی حرکت نقل کر دی، ماقبل کو دے دی، باقی حرکت زال کو دے دی، تو با ساکن ہو گیا، اور با کا با میں ادغام کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یذب ہو گیا. تو یہاں پہ کون سا قاعدہ جاری ہو گیا؟ یمدو کا قاعدہ جاری ہوا، ٹھیک ہے. تیسرا لفظ ہمارے پاس ذبہ. اصل میں ذبہ اصل میں ذبیبہ. اب میرے ساتھ یہ تعلیل کرتے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے یا نہیں. ذبیبہ تھا، یہ کیا تھا؟ ذبیبہ فعیلہ.
کون سا صیغہ بنتا ہے یہ؟ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف. یہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ہے. ذب اصل میں کیا تھا؟ ذبیبہ. ذب اصل میں ذبیبہ. تو اس میں بھی مد کا قاعدہ جاری ہو گیا. ذب ہو گیا، ٹھیک ہے، مد کا قاعدہ. یہ فعل ماضی مجہول ہے. یہ یہاں پہ مد کا قاعدہ جاری ہوا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ ذب جو ہے، اس میں ایک اور تعلیل بھی ہے. ذب، اس میں ایک اور تعلیل بھی ہے. یہ ذب جو ہے امر کا بھی صیغہ، امر حاضر کا. یہ کیا ہے؟ ذب اصل میں امر حاضر کا بھی صیغہ ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا اس کو بناتے کس سے؟ امر حاضر کو تذب، فعل مضارع سے بناتے ہیں نا امر حاضر کو. تذب، تذب. اب یہاں پہ علامت مضارع کو گرا دیا. علامت مضارع کو ہم نے کیا کر دیا؟ یہ علامت مضارع اس کو گرا دیا، ٹھیک ہے. کیا بن گیا؟ ذب. تو حمزہ وصلی کی ضرورت ہی نہیں، حمزہ وصلی کی ضرورت ہی نہیں ہے. علامت مضارع گرا دیا. حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں. ذب ہو گیا. ذب ہو گیا. ہم نے قاعدہ پڑھا تھا لم یفر کا قاعدہ. لم یفر کا قاعدہ پڑھا تھا کہ جو مشدد حرف مضارع کے آخر میں آئے، اس کا ماقبل مفتوح یا مکسور ہو یا مضموم ہو، تو حالت جزم اور امر حاضر میں اس میں 4 صورتیں پڑھ سکتے ہیں. ذب، ذبا، ذبی، اذبب. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے ذبا فتحی والی صورت اپنائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ذبا فتحی والی صورت. 4 صورتیں جائز تھی نا اس میں. چار صورتیں جائز ہے. فتحہ، ضمہ، کسرہ اور بغیر ادغام، یعنی فک کے ادغام جسے کہتے ہیں. تو یہاں پہ کون سی صورت تھی؟ ذبہ فتحی والی صورت. ٹھیک ہے. آگے چلیں کہ یہ کہاں پہ اور کہاں جاری ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ذاب، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ذاب،
یہ تنوین پتہ نہیں کیسے لگتی ہے. بالا یہ ذاب بن نہیں پڑھنا ہے، اس کو ذاب بن پڑھنا ہے. یہ کیا پڑھنا ہے؟ یہ ذاب بن پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ ذاب بن. ذاب بن ٹھیک ہے. اصل میں کیا تھا؟ ذاب بن. اصل میں یہ ذاب بن تھا، فاعل کے وزن پر. ذاب بن فاعل کے وزن پر. تو حاجہ کا جو قاعدہ ہے، حاجہ کا قاعدہ، اس کے مطابق اس کو کیا کر دیا؟ ذاب بن بنا دیا. اس کو کیا بنا دیا؟ ذاب بن بنا دیا. یہ بھی امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلیں. مذہب بن. مذہب بن. اصل میں یہ مذببن تھا. مذببن. یہ مذہب اصل میں کیا تھا؟ مذببن مفعول کے وزن پر. یمدو کے قاعدے کے مطابق، یمدو کے قاعدے کے مطابق یہ مذہب بن ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آگے ایک لفظ ہے مذاب بن. مذاب. یہ جمع مکسر کا صیغہ اس میں ظرف کا. مذبب مذببان مذاب. مذب مذابانی مذاب. مذا اصل میں کیا تھا؟ مذابیبو. مذابیبو. تو یہاں پہ بھی حاجہ کے قاعدے کے مطابق اس کو کیا کر دیا؟ مذابو کر دیا. ٹھیک ہے. آٹھواں لفظ ہے زبا. زبا اصل میں کیا تھا؟ یہ زب با فعلا کے وزن پر. اس میں تفضیل واحد فعلا کے وزن پر زبا. تو با کا با میں ادغام کر دیا. تو یہ تقریباً 8 مقامات ہیں جہاں پہ اس میں ظرف کے قواعد جاری ہوتے ہیں. یہ 8 مقامات ہیں جہاں پر اس میں ظرف کے قواعد جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. آپ کو میں نے مثالیں دی تھی، کتاب بھی آپ کو میں نے بتائی، تعلیم الصرف. وہاں پہ مختلف مثالیں آپ کو دی ہے، مختلف الفاظ دیے ہے. صرف ایک باب سے نہیں، ثلاثی مجرد کے ابواب سے بھی آپ کو مثالیں دی ہے. ثلاثی مزید فیہ کے ابواب سے بھی آپ کو مثالیں دی گئی ہے. تو ان کی آپ پریکٹس کریں. آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گی اتنا ہی فائدہ ہوگا، آپ کو مہارت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں مضاف کے قواعد آپ کو بتا دیے جو جاری ہوتے ہیں، کہاں کہاں جاری ہوتے ہیں. اب آگے ہم چلیں گے، مثال کے قواعد پڑھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے بتایا تھا کہ ہفت اقسام 7 چیزوں کو کہتے ہیں: صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. تو معتل ایک لفظ ہم نے بولا تھا، معتل. معتل اصل میں کہتے ہیں کہ فاعل لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے.
फा कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो तो उसको मुअत्तलुल फा भी कहते हैं, उसको मुअत्तलुल फा भी कहते हैं और मिसाल भी कहते हैं। फा कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो तो उसे मुअत्तलुल फा और मिसाल कहते हैं। मशहूर नाम मिसाल है, तो मिसाल के कवायद हम पढ़ेंगे। फा कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो, चाहे वाव हो या चाहे या हो। हर्फ इल्लत दो आ सकते हैं, वाव और या। फा कलमे के मुकाबले में तो इसको हम क्या कहेंगे, मिसाल। वाव को मिसाल वावी बोलते हैं, या को मिसाल याई कहते हैं। ये दो किस्में हो जाएंगी, मिसाल वावी और मिसाल याई। अब इसके कुल हमारे पास जो कवायद लिखे हुए हैं तकरीबन 10 है। इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। तवज्जो के साथ अगर आप सुनेंगे इंशाल्लाह आप ये भी समझ में आ जाएंगे आपको। सबसे पहला कायदा ईदतुन का, ईदतुन। सबसे पहला कायदा क्या है, ईदतुन। ईदतुन का कायदा, जो मस्तर फ़िअलुन के वजन पर हो, जो मस्दर क्या हो, फ़िअलुन के वजन पर हो। जी, जो मस्दर मस्दर फ़िअलुन के वजन पर है, ये सिर्फ पेश नहीं है, ये आप इसको दो पेश समझें, ठीक है। ये जो मस्दर क्या हो, फ़िअलुन के वजन पर हो और उसके फा कलमे के मुकाबले में वाव हो। फ़िअलुन की वजन पे मस्दर है, फा कलमे के मुकाबले में वाव है, तो उस वाव की हरकत माकबल को देकर उस वाव की हरकत माकबल को नहीं, माबाद को, यानी वाव के बाद जो लफ्ज है, ठीक है, उस वाव की हरकत माबाद को देकर उसको हज़फ करना और उसके बदले में आखिर में ताए मुतहर्रिका लगाना जरूरी है। इदतुन का कायदा क्या हुआ, जो मस्दर फ़िअलुन के वजन पर हो, वे अद्दुन फ़िअलुन,
اور उसके फा कलमे के मुकाबले में वाव हो तो उस वाव की हरकत माबाद को देकर वाव को हज़फ करना और उसके आखिर में ताए मुतहर्रिका लाना ये जायज है। ताए मुतहर्रिका लेके आना क्या है? जायज है। जैसे ईदतुन असल में क्या था? वेअदुन। ईदतुन असल में क्या था? वेअदुन। असल में वेअदुन था। तो अब आप यहाँ पे देखें, वेअदुन फ़िअलुन के वजन पर है, फा कलमे के मुकाबले में वाव है, वाव की हरकत आयन को दे दी और वाव को गिरा दिया, ईदुन हो गया। आखिर में ताए मुतहर्रिका लेके आ गए तो क्या हो गया? ईदतुन। ईदतुन हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें ये याद रखें कि अब ये फेल मुजारी जो है मफ्तूहुल ऐन भी होता है। फेल मुजारी जो है कभी मफ्तूहुल ऐन होता है, कभी मज़मूमुल ऐन होता है, कभी मकसूरुल ऐन होता है। यानी आयन कलमे के ऊपर फतहा होता है, जम्मा होता है, पेश होता है, ये कसरा होता है। तो अगर आप मफ्तूहुल ऐन हो, फेल मुजारी क्या हो? मफ्तूहुल ऐन हो, तो अब ये इसको ईदतुन का कायदा जारी करने के बाद उसको फतहा देना भी जायज है। जैसे साअतुन, जैसे क्या है? साअतुन। जी 1 मिनट मुझे वक्त दे दें, 1 मिनट। हमारे उस्ताद सब गम्मे से जाए 1 मिनट में। तो मैं ये बता रहा था कि अगर माजी मुजारी मफ्तूहुल ऐन हो तो फिर ये कायदा जारी करने के बाद ये फतहा भी पढ़ सकते हैं, फतहा भी पढ़ सकते हैं। जैसे सिआतुन और साअतुन। सिआतुन सिआतुन और साअतुन दोनों तरह पढ़ सकते हैं। दोनों तरह पढ़ सकते हैं। और कुरान मजीद में ये लफ्ज है भी, साअतुन कुरान मजीद में ये लफ्ज मौजूद भी है। ठीक है, ये कायदा हो गया। दूसरा कायदा है यईदु। यईदु का कायदा, यईदु का कायदा ये बहुत आसान है। जो वाव अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ जाए, जो वाव अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ जाए उसको मुजारे और अमर में हज़फ करना जरूरी है। जो वाव अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ जाए उसको मुजारे और अमर में हज़फ करना जरूरी है। ठीक है, मिसाल देता है। यईदु असल में क्या था? यऊईदु। यईदु असल में क्या था? यऊईदु। यफ़इलु यज़रिबु के वजन पर। अब ये देखिए, ये वाव है, अलामत मुजारी क्या है? मफ्तूह है। अलामत मुजारी मफ्तूहा, अलामत मुजारी मफ्तूहा से मुराद क्या? अलामत मुजारी मफ्तूहा और कसरा के दरमियान वाक़ हो जाए, आइन के ऊपर कसरा है
जो वाव अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ जाए तो उस वाव को मुजारे और अमर में हज़फ करना जरूरी होता है। यउइदु से क्या बन जाएगा? ईद हो जाएगा, या ईदो हो जाएगा। यउइदु से क्या हो जाएगा? या ईदो। कायदा समझ में आ गया? जो वाव अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ जाए उसको मुजारे और अमर में हज़फ करना जरूरी होता है। जैसे यउइदु से याइदु, यउइदु से याइदु। ठीक है। अमर की मिसाल एवईद से, एवईद से ईद। असल में अमर की जरूरत नहीं है, अमर की यहाँ पे जिक्र करने की जरूरत भी नहीं। जब मुजारी या ईदो हो गया तो या ईदो ताईदो से जब मुजारी गिरा बना अमर बना देंगे, अलामत मुजारी गिरा देंगे, बाकी वैसे ही रहेगा। तो ये अमर का को जिक्र करने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। ठीक है। बस सिर्फ ये अमर को जिक्र ना करें, अलम मुजारी ही को जिक्र कर लें। जब मुजारी में जारी हो जाएगा तो खुद ब खुद अमर में भी ये कायदा जारी होगा। ठीक है। ये तो एक वो पहलू था इस कायदे का। अलामत मुजारी मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ जाए तो उसको मुजारी में हज़फ करना जरूरी है। इसका दूसरा पहलू जो है वो भी मौजूद है कि जो वाव अलामत मुजारी मफ्तूहा और ऐसे फतहा के दरमियान आ जाए जिसका आइन और या लाम कलिमा हरूफ हल्की में से हो। ये इल्म सर्फ जो है उसमें आप ये कायदा इस तरह बयान हुआ है। मैं ज़रा समझा लेता हूँ, एक मिनट ज़रा लिख लूँ ताकि याद रहे आपको। इसी तरह जो वाव अलामत मुजारे मफ्तूहा और ऐसे फतहा ऐसे फतहा के दरमियान वाक़ हो जिसका आइन या लाम कलमा हरूफ हल्की में से हो, तो उसे भी हज़फ करना ज़रूरी है। हरूफ हल्की 6 है, मालूम है हरूफ हल्की? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा ये हरूफ हल्की है। ठीक है। अब मिसाल समझे इसकी। यौसअ, यौसअ। अब यहाँ पे आप देखिए यौसअ, जो वाव है ये अलामत मुजारे में है। अलामत मुजारे भी मफ्तूह है और उसके बाद भी फतहा है। ये अलामत मुजारे भी मफ्तूह है और उसके बाद भी फतहा है। तो वाव ऐसे अलामत मुजारे मफ्तूहा और ऐसे फतहा के दरमियान वाक़ है जिसका आइन लाम कलमा क्या है? हरूफ हल्की में से है। आइन जो है ये क्या है? हरूफ हल्की है। तो ऐसे वाव को भी गिराना जरूरी होता है। वसा से यसअ, यौसअ से यसअ, यौसअ से क्या बनेगा? यसअ। यौदअ, यौदअ से यदअ, यौदअ से यदअ। तो ये यईदु का कायदा भी आपको समझ में आ गया होगा। यईदु का कायदा समझ में आ गया सबको?
तीसरा कायदा है मीआदुन का कायदा। तीसरा कायदा कौन सा है? मीआदुन। ये बिल्कुल सिंपल सा आसान सा है। जो वाव कसरे के बाद आए उसको या से बदलना जरूरी है। जो वाव कसरे के बाद आए उसको या से बदलना जरूरी है। जो वाव कसरे के बाद आए उसको या से बदलना जरूरी है। जैसे मिवादुन, मिवादुन, ये तो मऊ हो गया। मिवादुन। अब देखिए वाव कसरे के बाद है, वाव से पहले क्या है? अच्छा, ये वाव साकिन कैद लगा दे, वाव साकिन कैद लगा दे। जो वाव साकिन कसरे के बाद है उसको या से बदलना जरूरी है। अब यहाँ पे वाव साकिन है, मिवादुन में वाव क्या है? साकिन है। ये वाव साकिन है, कसरे के बाद वाक़े हुआ है, तो इस वाव को किससे बदल दिया? या से बदल दिया, तो क्या बन गया? मीआद। ये क्या बन गया? मीआद बन गया। वाव को या से बदल दिया तो क्या बन गया? मीआद बन गया। इसी से मिलता जुलता जो है इसके बराक्स एक कायदा है, यू सरू का कायदा। उसको क्या बोलते हैं? यू सरू का कायदा। ठीक है। अब यानी जो या साकिन जम्मे के बाद आए उसको वाव से बदलना जरूरी है। मियाद उनके कायदे के बिल्कुल बराक्स। जो या कसरे के बाद आए उसको वाव से बदलना जरूरी है। जो या कसरे के बाद आए उसको वाव से बदलना जरूरी है। जैसे यु सरो, यू ई सरो, यू सरो नहीं, यू ई सरो। ये यू ई सरो, ये क्या है? यू ई सरो, यू फालो के वजन पर। ठीक है, मुजारे मजहूल का सीगा है। अब ये देखिए या जो है साकिन है, या साकिन है, गलती हो गई, ये या साकिन कसरा नहीं है। अब भी बस सोए हुए बता नहीं रहे। जम्मे के बाद आया, जो या साकिन जम्मे के बाद आया उसको वाव से बदलना जरूरी है। ठीक है, या साकिन है और उससे पहले क्या है? जम्मा है। तो या साकिन जम्मे के बाद आ गई है तो इस या साकिन को वाव से बदलना जरूरी है। यू ई सरू से क्या बनेगा? यू सरू। यू ई सरू से क्या बनेगा? यू सरू बनेगा। ठीक है, यू ई सरू से क्या बनेगा? यू सरू। समझ आ गई होगी इसकी। नंबर 5 कायदा देखें, कूतीला का कायदा। कूतीला का कायदा। जो अलिफ जम्मा के बाद आए उसको वाव से बदलना जरूरी है। अलिफ किसके बाद आए? जम्मा के बाद। जो अलिफ जम्मा के बाद आए उसको वाव से बदलना जरूरी है।
जो अलिफ जम्मा के बाद आए उसको वाव से बदलना जरूरी है। जैसे क़ातल का जब फिल वो बनाते हैं, मजहूल बनाते हैं, मैं मिसाल से समझाता हूँ। क़ातला, इसका जब हम क्या बनाए, फिल माजी मजहूल बनाते हैं। क़ातला क्या है, क़ातला फिल माजी मारूफ है। आपने देखा होगा कि अलामत ये फिल माजी जब बनाते हैं, शेरों में क्या लगाते हैं, पेश लगाते हैं। ठीक है, क़ाफ को पेश लगा दिया, बाकी आखिर में उसी तरह होता है, उस पे फतहा ही होता है। और ये क़ातला आखिर से पहले वाले हर्फ पे कसरा होता है, ठीक है, और शुरू में जम्मा होता है, तो जम्मा लगा दिया। अब ये देखिए अलिफ है, ये क्या हो गया, जम्मे के बाद आ गया, तो इस अलिफ को किससे बदल देंगे, वाव से बदल देंगे। क़ातला से क्या बन जाएगा, क़ूतिला बन जाएगा। ये क़ातिला ये पढ़ा भी नहीं जाता, कैसे पढ़ेंगे, क़ातिला, तो इसको क़ूतिला करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क़ूतिला। फायदा क्या हुआ, जो अलिफ जम्मा के बाद आए उसको वाव से बदलना जरूरी है। जो अलिफ जम्मा के बाद आए उसको वाव से बदलना जरूरी है। जैसे फिल माजी मजहूल में पेश के बाद जम्मा के बाद अलिफ आता है, पढ़ा भी नहीं जाता, तो उसको किससे बदला जाता है, अलिफ से, ये वाव से बदला जाता है, क़ूतिला पढ़ा जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। आज के लिए इतने ही काफी है। इन कवाइद की आप प्रैक्टिस करें। तकरीबन 2-3 कवाइद रह गए हैं, इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे, और कल बाकी जो कवाइद है वो भी पढ़ेंगे, और जहां जहां ये कवाइद जारी होते हैं उनकी भी निशानदही करेंगे। आज का आपका होमवर्क ये है कि ये क्या नाम है, मिसाल वावी की कुछ मिसालें आप प्रैक्टिस करेंगे। बाब जरा बैजरिबु से वादा याइदु वादन, इससे आप सर्फ सगीर भी पढ़े मुकम्मल, माजी मुजारे अमर और नहीं, इसमें फाइल, इसमें मफऊल, इसमें ज़र्फ, इसके सीगे भी पढ़े। इसी तरह वजिल यौजलु वजलन, वजिल यौजलु वजलन का माना होता है डरना, इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। वज़अ यज़अ वज़अन, इसका माना होता है रखना। ये 3 अबवाब मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस करें। 3 अबवाब मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। कोई बात अगर समझ ना आई हो तो पूछ लें।